Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 8 February 2022, and I am teaching you chapter number 19. Name of the chapter, Things We Make. So, student, what are the learning objective of this chapter? Children must understand different types of art and craft of our country. Okay, and importance of these things in our life. So uh, student, uh, let us start this chapter. As you know that early human being, they are also living in the forest just like the animals, and they always move from one place to another in search of a food. Okay, so early human beings, they also move from one place to another in search of a food. So early man observed different types of a animals in its surrounding. ठीक है, तो अर्ली ह्यूमन बींग भी जैसे फॉरेस्ट में एनिमल रहते थे बेटा, वैसे ही अर्ली ह्यूमन बींग्स रहते थे. ठीक है, उसने अपने अगल बगल बहुत से एनिमल्स को ऑब्जर्व किया. तो उसने कुछ एनिमल्स को देखा कि some animals are very dangerous. Even early human beings are afraid of that animals. Okay, so how they get the food, they get the food from the plants, and even at that time early human beings, they hunted animals. वो animals को kill करके भी उनके फ्लैश को खाते थे. ठीक है, तो उस समय अर्ली मैन को ये पता चल गया था कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो जो जिनको वो अप टेम कर सकता है. टेम मतलब अपने वश में कर सकता है. ठीक है, तो उसने कुछ एनिमल्स को वश में करना भी, अपने संग रखना भी स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, so lot of change come in the life of the early human beings when they learn how to grow the crops. It means I am talking about the cultivation. Okay, so lot of change come in the life of the early human beings, because as you know earlier, they moved from one place to another in search of food. Even they hunted animals also. वो दूसरे एनिमल्स को भी किल करते थे और उसके फ्लैश को भी क्या करते थे, खा जाते थे. ठीक है, तो उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंजेस कब आई, जब अर्ली मैन कम टू नो हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स इन द फील्ड्स. ठीक है, तो अब इसके लिए उसने he start cutting the trees to make the land free for the cultivation. And due to this, once the early man uh, uh, once the early man learn how to grow the crops in the field, then his life become settled. ठीक है, ऐसे वो हमेशा घूमते रहते थे इधर से उधर, क्यों, फूड की तलाश में. अब जब उनको क्रॉप्स लगाना आ गया, फूड को प्रोड्यूस करना आ गया, तो उनकी लाइफ क्या हो गई, सेटल हो गई. ठीक है, दे लर्न कैटल ग्रेजिंग, मिल्किंग द एनिमल्स. उनकी लाइफ क्या सेटल हो गई. मैंने तुम लोग को बताया भी कि अर्ली मैन ने ऑब्जर्व किया था सराउंडिंग्स में कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनसे वो बहुत डरता था. ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ सम animals, and these animals are carnivorous animals which eat the flesh of other animals. Now when he learned how to grow the crop, his life becomes settled and he start keeping few animals with him. ठीक है, कुछ एनिमल्स को भी उसने अपने संग रखना स्टार्ट कर दिया था, और इन एनिमल्स से उसे मिल्क मिलता था, और दे ही यूज दिस एनिमल्स इन फॉर कैरिंग द heavy loads also from one place to another. So in this manner, due to the uh, in this manner, a lot of change come in the life of a early human beings
once he start growing the crops in the field. सो आफ्टर सम टाइम, जो कि ये ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस किया ही है तुम लोग से, डिस्कवरी ऑफ ए फायर, ठीक है। फिर अर्ली ह्यूमन बींग्स को जब फायर के बारे में पता चल गया तो लॉट ऑफ चेंजेस अगेन कम इन हिज लाइफ, एंड ड्यू टू दिस फायर ही आल्सो इन्वेंट मेनी न्यू थिंग्स, ठीक है। अर्ली, अब जब अर्ली ह्यूमन बींग्स ने फायर की डिस्कवरी कर ली तो उससे भी उसके लाइफ में बहुत सी चेंजेस आई, ठीक है। क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया था कि जब फायर को देख के सारे एनिमल्स अफ्रेड होते हैं, तो अब उसे पता चल गया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस फायर ही वाज सेफ फ्रॉम द डेंजरस एनिमल्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। और फायर की डिस्कवरी से उसने बहुत से दूसरे दूसरे भी इन्वेंशन किए, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो अब नाउ अनदर टॉपिक इज clay and pots है। Now see student, try to understand how the early human being do the invention of clay and pots। अब क्ले और पॉट का इन्वेंशन अर्ली ह्यूमन बींग्स ने कैसे किया, यही चीज अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। द अर्ली मैन नीडेड कंटेनर्स टू कीप द ग्रेन्स ही हैड ग्रोन। अब देखो अर्ली मैन के सामने नई प्रॉब्लम उसके सामने क्या राइज हुई, नाउ ही लर्न हाउ टू ग्रो द क्रॉप, सो टू कैप्ट दिस ग्रेन ही नीड सम कंटेनर्स। अब इन ग्रेन्स को रखने के लिए, ग्रेन मतलब जो अनाज हुआ, क्रॉप से जो अनाज हुआ, इसको रखने के लिए उसे कुछ कंटेनर चाहिए था। अगर आप सीड्स को, क्योंकि ये सारे क्रॉप्स जो हम लोग खाते हैं ये क्या है, सीड है, हम इन्हें हम लोग ईटेबल सीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी सीड्स हैं जिन्हें हम खाते हैं बेटा, जिसको कि चैप्टर नंबर फूड में भी मैंने बताया था। सो वी से इट एज ए ईटेबल सीड्स, ओके। सो नाउ इट बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द अर्ली ह्यूमन बींग्स वेयर दे केप्ट देयर ग्रेन्स, सो दे नीड व्हाट, दे नीड सम कंटेनर। तो अब उसने क्या किया, स्टार्टिंग में तो उसने क्या किया, स्ट्रा बास्केट्स, उस स्टार्टिंग में उसने जो अपने सराउंडिंग्स में जो स्ट्रा थी उसी को यूज कर करके बास्केट बनाने लगा टू कैप्ट द ग्रेन। इवन जो कोकोनट, आप लोग कोकोनट खाते हो ना, नारियल, उसका जो शेल होता है बहुत हार्ड होता है, बट तो उसको भी वो यूज करता था, बट दैट शेल इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ही ट्राई टू मेक द पॉट्स विद द हेल्प ऑफ ए क्ले, फिर उसने क्ले की हेल्प से भी पॉट बनाने की सोची, ठीक है। उसने क्ले के हेल्प से भी क्या बनाने का सोचा था, पॉट बनाने का सोचा था। लेकिन जो बेटा उसने क्ले से जो पॉट्स बनाई वो दैट आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनकी शेप भी एक्यूरेट नहीं थी, और जो क्ले से वो जो पॉट्स बना रहा था दैट इज आल्सो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो they would cover them, he but these container were not strong after the discovery of a fire, ठीक है। अब क्या हुआ, जब डिस्कवरी हुई फायर की, तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही लर्न टू बेक दीज क्ले पॉट्स एंड मेक देम स्ट्रोंगर। अब जबकि मैंने तुम लोग को बोला कि मैंने अभी जस्ट पहले बोला था ना कि जब फायर की डिस्कवरी हुई तो उससे भी लॉट ऑफ चेंजेस आई अर्ली ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। पहले जो उसने क्ले वाले पॉट्स बनाए वो क्ले पॉट्स की बड़े स्ट्रॉन्ग नहीं थे, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट विद द डिस्कवरी ऑफ द फायर ही बेक द क्ले पॉट्स एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग। आग में गर्म करके जो उसके मिट्टी के बर्तन बने वो कैसे थे, क्या स्ट्रॉन्ग थे। अब इसमें वो अपने ग्रेन्स को इजिली रख सकता था, ठीक है। तो ही वॉज एबल टू मेक ऑल काइंड ऑफ ए पॉट्स, अब उसने पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो एक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं इसकी कि अर्ली मैन को कंटेनर्स की नीड क्यों पड़ी, टू केप्ट द ग्रेन्स विच ही ग्रो इन द फील्ड, ओके। तो इन द स्टार्टिंग ही मेक अ बास्केट ऑफ द स्ट्रा के बास्केट उसने बनाए स्टार्टिंग में। उसके बाद जो नट शेल्स होते हैं, जो क्या कहते हैं, नारियल के, जो आप लोग देखते हो नारियल, तो उसका जो शेल होता है वो भी बहुत हार्ड होता है, उसमें भी रख सकता था, लेकिन दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल इन साइज। आफ्टर दैट ही स्टार्ट मेकिंग द कंटेनर विद द हेल्प ऑफ ए क्ले, तो उसे ऐसा नहीं है कि उसने बना नहीं पाया, उसने कंटेनर्स बनाए क्ले से, बट दैट कंटेनर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी वीक,
ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द फायर, नाउ व्हेन ही मेक द पॉट्स ही बेक्ड देम इन द फायर, सो बाय दिस मेथड द पॉट्स बिकम वेरी स्ट्रोंगर। सो दैट इज द रीजन अर्ली मैन को अब स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स बनाना आ गए। आप लोग को लगता होगा, आप लोग को अभी भी कोई मिट्टी का पॉट दे दे, एक घड़ा दे दे, तो आपको तो अभी भी लगेगा अरे ये तो बहुत वीक होता है, सर तो बहुत स्ट्रांग बता रहे हैं। लेकिन बेटा इमेजिन करो आज से हजारों साल पहले, तो आज से हजारों साल पहले वाकई वो बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में तो तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टील के बर्तन है तुम्हारे घर में, सारे यूटेंसिल स्टील्स के होंगे, और स्टील के बर्तन बहुत हार्ड होते हैं, वो ब्रेक नहीं होते हैं। तो आप उससे कंपेयर करोगे, तो पॉट जो है बहुत ही वीक है उसके सामने। लेकिन ये बात प्रेजेंट टाइम की नहीं है, आज से हजारों साल पहले की है, जब अर्ली ह्यूमन बींग्स भी फॉरेस्ट में रहते थे। आज हम ह्यूमन बींग्स क्या है, हम घरों में रहते हैं, देर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर प्रेजेंट इन आवर हाउसेज, ये हमारा प्रेजेंट का है। लेकिन जब अर्ली टाइम था तो वी आर ऑल्सो लिविंग ए लाइफ ऑफ ए, वी आर ऑल्सो लिविंग ए लाइफ लाइक अ एनिमल्स, वी स्टे इन द फॉरेस्ट। सो उस समय जो उन्होंने पॉट्स बनाए दैट इज वेरी स्ट्रांग। क्यों, अब उनको फायर की डिस्कवरी के बाद उनको बेक किया उसने फायर में, और ये भी हो सकता है उसे उसके पास देखो बेटा कोई बुक वुक तो थी नहीं कि उससे पढ़ पढ़ के वो करता था। बाई चांस कभी होगा उसने कुछ पॉट बनाए होंगे, और वहां पे अगल बगल वो लोग आग जला के, लकड़ियां से आग जला के, आग जलाई होगी लकड़ियां जला के, तो जब उस आग की हीट गई होगी उस पॉट्स पे, तो उन्होंने हो सकता है ऑब्जर्व किया होगा कि क्ले जो है बहुत स्ट्रांग हो गई। तो यहां से उनको आइडिया आ गया होगा कि क्ले के पॉट बनाओ और उसके बाद उसको बेक्ड कर लो, किसमें, फायर में बेक कर लो। इससे जो क्ले पॉट होती है, जो मिट्टी होती है, वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। मिट्टी कैसे हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरह से अर्ली ह्यूमन बींग्स ने कुछ किया होगा ओल्ड टाइम में। ठीक है, अब अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉटर व्हील। ठीक है, पॉटर व्हील। ठीक है, हु, सो व्हाट इज अ पॉटर, पॉटर इज अ पर्सन हु मेक, ठीक है, पॉटर क्या होता है, सो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉटर इज अ पर्सन हु मेक द अर्थनवेयर विद द हेल्प ऑफ ए व्हील। ठीक है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, किसके हेल्प से बनाता है, व्हील के हेल्प से। अब देखो धीरे धीरे जब टाइम और पास हो बढ़ा, तो अब ह्यूमन बींग्स को अब और भी बेटर ढंग से मिट्टी के बर्तन बनाने आ गए। अब इसके लिए उसने क्या यूज की, व्हील यूज की। तो आप लोग को मैंने 13 चैप्टर में पढ़ाया था, चैप्टर 13 था आपका डिस्कवरी ऑफ व्हील, ऑफ व्हील। ठीक है, ये चैप्टर ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 13 बहुत पहले हमने पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ ए व्हील। तो व्हील की जब डिस्कवरी हो गई, ठीक है, द फर्स्ट व्हील विच वाज मेड बाय कटिंग द लॉग ऑफ ए वुड, जो सबसे पहली व्हील बनी थी वो कैसे बनी थी, लॉग ऑफ वुड को कट करके बनी थी। ठीक है, तो जब ह्यूमन बींग्स को व्हील बनाना भी आ गया, तो उसके बाद जो क्ले के जितने पॉट्स बने वो किसके हेल्प से बने, व्हील पे बने, और इनकी शेप बहुत अच्छी होती थी, और इन्हें बेक्ड कर लेते थे फायर पे, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाते थे। ठीक है, विद द डिस्कवरी ऑफ द व्हील, पॉटर व्हील प्रूव टू बी वेरी यूजफुल। तो आप एक ये बात आपके समझने की एक बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बोलते हैं कि व्हेन अर्ली ह्यूमन बींग्स कुक्ड द फूड, तो विच यूटेंसिल्स दे यूज एट दैट टाइम, जैसे आज के प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे कि मैक्सिमम जो यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है आपके घर में, वो सारे के सारे स्टील के होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। लेकिन जब अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करें एट द टाइम व्हेन दे कुक द फूड, सो व्हाट आर द यूटेंसिल्स यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन बींग्स, तो वो उस समय दे यूज द यूटेंसिल्स विच आर मेड बाय द मड। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों को यूज किया करते थे वो लोग। ठीक है, तो ये हो गया। तो उस समय पुराने टाइम में, आज से हजारों साल पहले अर्ली ह्यूमन बींग्स ने जो यूटेंसिल्स यूज किए थे, तो वो कैसे किए थे, दे आर मेड ऑफ द क्ले। ओके, सो अब हुआ, यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ द व्हील वाज इन्वेंटेड, ये मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था चैप्टर 13 में, कि अर्ली ह्यूमन बीइंग ने ऑब्जर्व किया कि जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बड़ी इजीली मूव करते हैं।
सरफेस पे, लैंड पे। तो इससे उसके दिमाग में आया था, तो इतना बड़ा ट्री का लॉग है तो उसको पुश करना तो आसान नहीं है, इससे बेटर इसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लें तो इजिली इस तरह व्हील बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट व्हील जो अर्ली ह्यूमन बींग्स ने बनाई थी बेटा, वो व्हील उन्होंने बनाई थी लॉग ऑफ वुड को कट करके, ठीक है। तो हो गया। अब देखो, द पॉटर विल हेल्प हिम टू मेक पॉट्स फास्टर एंड इन मैनी डिफरेंट शेप्स। आप लोग कभी टाइम लगे, कभी जाना जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते होंगे, जैसे विलेजेस में आप लोग जाते होंगे, तो अभी भी देखो जैसे चाय है, चाय लोग कुल्हड़ में ही पीते हैं, ठीक है। और अभी भी मिट्टी के बर्तनों में भी हम लोग रेगुलर तो नहीं, लेकिन कभी पार्टी वार्टीज होती हैं बेटा, तो देखो लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं, उस वो बहुत टेस्टी बनता है। डेली हम नहीं यूज़ करते, लेकिन ओकेजनली हम लोग क्ले पॉट्स को यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग द फूड। हमें इनको क्ले पॉट्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। द पॉटर व्हील help him to make pot faster in many different shapes. These clay pots are known as earthenware. So what is earthenware? The pots made of clay, ठीक है। earthenware क्या है? earthenware. So what is earthenware? The pots made up of a clay. मिट्टी से बने बर्तनों को ही earthenware बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, टुडे वी यूज लवली कलरफुल ग्लेज्ड पॉट्स। ग्लेज पॉट्स, ग्लेज मतलब होता है जो ये जो पॉट्स होते हैं इस पे जो कलरिंग जो होती है वो बहुत शाइन आती है, उस कलर्स में चमकते हैं वो देखने में, ठीक है। सो टुडे वी यूज लवली कलरफुल ग्लेज्ड पॉट। ग्लेज पॉट मीन्स द कलर विच आर यूज इट शाइन्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। एज वेसिस टी पॉट्स है, टी कप है, मनी बॉक्सेस, ठीक है, फूल जिसमें फूल फ्लावर्स रखते हैं उसको बेसिस बोलते हैं। टी पॉट्स है, जानते हैं आप लोग, चाय रखने वाला। और टी कप्स जो जिसमें हम लोग चाय पीते हैं तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। इवन इन द ओल्ड टाइम हम लोग मनी भी उसमें रखते थे, स्मॉल होल कर देते थे एंड वी पुट मनी इन दैट, इस तरह भी हम लोग मनी कलेक्ट करते थे। हो सकता है बच्चे आज भी रखते हो घर में, जिसको गुल्लक आप लोग बोलते हो, उसमें अपने पैसे डालते हो ना। तो दीज आर मेड इन डिफरेंट कलर लाइक ब्लू, ब्लैक एक्स्ट्रा। वी आल्सो गेट ब्यूटीफुल ज्वेलरी। अब देखो, जो मिट्टी के जैसे बर्तन बनते हैं इसी तरह बेटा वी देयर इज अ वेरी ज्वेलरी विच इज मेड विद द क्ले, एंड दिस ज्वेलरी इज नोन एज अ टेरिकोटा, ठीक है। ज्वेलरी, ज्वेलरी made from, jewelry made from clay, this jewelry is known as terracotta। ज्वेलरी मेड ऑफ क्ले इज नोन एज टेराकोटा। इसे प्लीज अंडरलाइन करना, ये दिस क्वेश्चन मेनी टाइम आस्क इन द एग्जामिनेशन। द ज्वेलरी विच इज मेड फ्रॉम द क्ले, दैट ज्वेलरी इज नोन एज टेराकोटा, ठीक है। तो अब देखो, क्ले के पॉट्स, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्ले के पॉट्स बहुत डिफरेंट शेप्स के और स्ट्रॉन्ग बनने लगे, हाउ, तो डिफरेंट शेप्स के क्ले पॉट्स बहुत जल्दी बहुत फास्ट बनने लगे, उसका रीजन था ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ द व्हील, ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द व्हील, द मैन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट यूजिंग द व्हील टू शेप डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे अभी पूछा कि हाउ द पॉट्स बिकम स्ट्रॉन्ग, द पॉट्स बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन वी बेक दैट पॉट्स इन द फायर। सो इन दिस मैनर the pots become strong, okay। So with the help of the clay we made different types of a pots, and these pots are used by the early human beings, okay। देखो, अब तो बहुत से अलग अलग मेटल्स हैं, वो आज के प्रेजेंट टाइम में, ओल्ड टाइम में नहीं थे। तो ओल्ड टाइम में जो ह्यूमन बींग्स ने यूज किए थे यूटेंसिल्स एट दैट टाइम, दैट इज ऑल मेड ऑफ ए clay। That is the reason what we say it as a earthenware। Earthenware, what does it means? Earthenware means the
pots which are made of the clay. Thank you.